हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा द डेक्कन एंड द साउथर्न इंडिया। की हाइलाइट्स: प्रोमिनेंट रूल इन साउथ, रिलेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इन वेरियस स्फेयर, डेवलपमेंट इन एरिया ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड साइंस, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा नेम्ड भक्ति। Let's start with Dad, we are going to Bangalore with friends. Which historic places could I visit in South? बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है कि हम बेंगलुरु जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो हमें कौन सा हिस्टोरिक प्लेस वहाँ पर विजिट करना चाहिए। देयर आर न्यूमरस मोनेस्ट्रीज, स्तूपास एंड म्यूजियम फुल ऑफ कल्चरल एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। उसके पापा उन्हें बता रहे हैं कि वहाँ पर आपको कई सारे मोनेस्ट्रीज, स्तूपास, म्यूजियम और कल्चरल चीज़ें मिल जाएंगी जो हमारी हिस्ट्री को दर्शाता है। The Mauryan period lasted from 321 BC to 185 BC. After the Mauryans, India was divided into a number of kingdoms. The Shunga, Kanwas, Satavahana and Khalwalas were part of the subsequent history of northern India. Likewise, Satavanahas, Cholas, Pandas and Cheras ruled in the South India. ये सभी साउथ इंडिया में रूल करते थे। इसी तरीके से Around this time, many foreign tribes also entered the Indian subcontinent through the northwestern mountain passes. Northwestern passes के थ्रू कई सारे और जो ट्राइब्स है उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पास कर लिया था, यानी सबकॉन्टिनेंट में वो आ चुके थे। किंगडम ऑफ द डेक्कन। दक्षिण, a Sanskrit word meaning south, discarded by the British, became Deccan, and in the southern part of the India peninsula. It was known as Dakshinapatha. In ancient times, it was that part of India which lay to the south of the Vindhyas and river Narmada. ये इंडिया का वो हिस्सा है जो कि साउथ में विंध्यास और नर्मदा रिवर पर स्थित था। To the south of the Deccan there lived the Dravidian language speaking people. The founder of the Satavahans dynasty was Simuka. जो यहाँ के लोग रहते थे सतवनस डायनेसिटी के जो फाउंडर थे वो क्या कौन थे? सिमुका। बच्चों अब बात करते हैं द सतावाहनास की। इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया द सतावाहनास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यास। दे आर ऑल्सो नोन एज आंध्रास। बच्चों सतावाहनास को आंध्रास भी कहा जाता था। दे एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, therefore the country became very prosperous under them. The most famous of the Satavahana king was गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये काफ़ी फेमस थे और इन्होंने इनके अंडर में कंट्री ने कई ज़्यादा प्रॉस्परस काम किया था, कंट्री कई ज़्यादा बिल्ड हुई थी और इसके साथ ही ट्रेड और कॉमर्स में इन्होंने कई काम भी किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 से 130 ईडी तक। गौतमीपुत्र सतकर्णी was regarded as the lord of Dakshinapatha. He was a great conqueror. Before his accession, the Sakas and driven the Satavahans away from Nasik in Maharashtra and western India. But Gautamiputra Satkarni defeated the Sakas and reinstated the power and prestige of the Satavanahas. बच्चों जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उन्होंने साकास को डिफीट किया, उन्हें हराया और उन्होंने अपना पावर वापस से ले लिया। The Satavahana kingdom extended from the Krishna delta to the mouth of the Godavari in the east. और इनका जो साम्राज्य था वो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी यानी ईस्ट तक पहुंच गया। And extended up to Nasik, the Kathiawara area for some time and a little beyond the Narmada into the north. और ये नासिक से लेकर कठियावाड़ तक जो कुछ देर के लिए नर्मदा तक रहा था जो कि नॉर्थ है। Contact between South India and North India and promotion of trade and commerce. To establish good relationship between South India and North India, the Satavahana kingdom played very important role. South India और जो नॉर्थ इंडिया था उनके बीच में एक सुलह बनाने के लिए, एक सामंजस्य खड़ा करने के लिए, एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सतवाहना किंगडम ने बहुत बड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। There was a brisk trade between the Deccan and northern western India. The growth of a trade and commerce boosted the prosperity of numerous towns and in fact that of the entire kingdom. On the west coast, the port of Bharucha provided good chance for foreign trade. This port was used by the ships coming from Iraq, Persia, Arabia and Egypt.
Trade with Burma and Malaya was carried on through ports in the Godavari Delta on the eastern seacoast. Administration of Satavahanas. The Satavahanas were good administrators. The king got unlimited power. The provincial governor was generally appointed as the सेनापति. बच्चों, जो सतवाहनास थे वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और उनके पास में अनलिमिटेड पावर थी और उनके जो सेनापति थे उन्हें प्रोविंशियल गवर्नर नियुक्त किया गया था. द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज वॉज ऑल्सो प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ अ गोलमिका हु वॉज द हेड ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट. जो गोलमिका थी वो हेड थी मिलिट्री रेजिमेंट की. द हेडमैन ऑफ ईच विलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस. बच्चों, जो हेडमैन होता है वो सभी विलेज के टैक्सेस और उनके लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए हेड होता है. रिलीजन. रिच मर्चेंट्स एंड द leaders of guilds of artisans had enough money to spare to make Jainism and Buddhism more popular. बच्चों, जो रिच मर्चेंट्स हैं उनके जो लीडर्स थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को मोर पॉपुलर कराने के लिए उन्हें और फेम देने के लिए उनके पास में पैसा अधिक मात्रा में था. मोस्ट ऑफ द मर्चेंट्स वर इधर बुद्धिस्ट और जैन्स, क्योंकि ज़्यादातर जो मर्चेंट्स थे या तो वो जैन्स थे या बुद्धिस्ट थे. देयरफॉर दे मेड जेनरस डोनेशन एट द cause of popularizing them. Their donated money was used to decorate stupas and चैत्यास. उन्होंने मनी डोनेट किया जिससे स्तूपास और चैत्यास बनाया गया. The चैत्यास were halls of Buddhist worship while the stupas were large semicircular mounds in which the relics of Buddha और Buddhist monks were enriched. बच्चों, जो चैत्यास था वो बुद्धिस्ट का वर्शिप था और जो स्तूपास था वो बुद्ध और बुद्धिस्ट का monks का वो enriched था. Thus, stupas were the most important of all Buddhist monuments. There are two famous stupas, one at Sanchi near Bhopal and other at Amravati in Maharashtra. बच्चों, दो स्तूपास थे जो कि सांची में है, जो कि भोपाल में है, और अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है. The monasteries that were near the stupas were called viharas. A vihara consisted of a central hall with a doorway entrance from a vrinda in front. Buddhist monks lived in viharas. बच्चों, विहारास में बुद्धिस्ट monks जो होते थे यानी पुजारी जो होते थे वो रहते थे. Many of the Buddhist viharas were built close to cities. Two such monasteries have been found at Takshila near Peshawar and at Sarnath near Varanasi. The monks living in these monasteries would go into the cities and beg for alms. Some Buddhist monks lived in monasteries which were carved into hillsides. In fact, these monasteries were huge caves. Like stupas and chaityas, viharas were also decorated with sculptures. बच्चों, चाहे वो stupas हो, चैत्यास हो, विहारास हो, सभी में sculptures स्थापित होते थे. The monasteries at Karle and Vidisha are remarkable specimens of architecture. Kingdom of North India. The Shunga dynasty, established by Pushyamitra, ruled for 112 years. बच्चों, जो शुंगा डायनेस्टी थी जिन्हें पुष्यमित्रा द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, उन्होंने यहाँ पर 112 साल तक राज किया था. द फेमस सांची स्तूपा नियर भोपाल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द शुंगा एरा. भोपाल में जो फेमस सांची स्तूपा है वो शुंगा एरा द्वारा ही बनाया गया था. The gateways and railings around the stupa were built during Satvahana rule. The Shungas were always at war with the Satavahanas and the Deccan powers and with Kharvela, king of Kalinga. बच्चों, जो शुंगास थे वो हमेशा सतवाहनास डेक्कन पावर्स के साथ में हमेशा जंग में रहते थे जो कि कलिंगा में था. Kharvela even attacked Pataliputra. The Shungas were finally overthrown by the Kavas. बाद में शुंगास को कावास द्वारा भगा दिया गया था. द रूल ऑफ द कावा डायनेस्टी वॉज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड. किंगडम्स ऑफ द साउथ. द साउथर्न किंगडम्स चोला, पांड्या एंड चेरा, द थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम इन साउथ इंडिया. These kingdoms made rapid progress during the early history of South India. The main source of our knowledge about these kingdoms is the Sangam literature. The Chola kingdom. The Chola kingdom was situated in an area to the northeast of the Pandya kingdom. बच्चों, जो चोला किंगडम था वो नॉर्थ ईस्ट के पांड्या किंगडम पर मौजूद था. बिटवीन द पेन्नार एंड द वेलार रिवर्स. इन दोनों रिवर्स के बीच में. द चीफ सेंटर ऑफ दिस किंगडम वॉज उरायूर, अ प्लेस फेमस फॉर इट्स कॉटन ट्रेड. उरायूर अपने कॉटन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस था. कारिकला वॉज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर.
A Chola king named Elara conquered Sri Lanka and ruled over it for nearly 50 years. This proves that the Cholas had a fleet of large, seaworthy ships and were expert in naval warfare. कावेरीपत्तिनम was the capital of Chola. कावेरीपत्तिनम चोला का कैपिटल था जिसने 50 साल तक श्रीलंका के ऊपर रूल किया था. The Pandya Kingdom. The Pandya Kingdom was famous for pearls. The Pandyas occupied the southernmost and the southeastern portion of the Indian peninsula. बच्चों जो पांड्या किंगडम था वो पर्ल्स के लिए बहुत फेमस था. It covered Tirunelveli, Ramnad and Madurai in Tamil Nadu. The Sangam literature talks about some of the Pandyas kings of whom Naidu Zinzahan is the best known. The third Sangam in Madurai was probably held under his patronage. The Pandyans were great patrons of art and literature. जो पांड्यान्स थे वो अपने आर्ट और लिटरेचर के लिए काफ़ी फेमस थे. मदुरई was the hub of the Pandya kingdom और मदुरई उनका हब था. The Chera kingdom. The Chera kingdom was situated in the west and north. It included the region between the sea and the mountains covering a portion of modern Kerala state. बच्चों जो चेरा किंगडम था वो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में सिचुएटेड था. वंजी was its capital और वंजी चेरा का कैपिटल था. This kingdom owed its eminence to trade with the Romans. Neduncheraland was a famous Chera king who fought against the Cholas and the Pandyas. जो इनका चेरा किंग था उसने चोलास और पांड्यास के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. Trade and roots. Chola, Pandya and Chera were greatly enriched by their trade with Rome. There was a brisk foreign trade between India and the West. बच्चों जो चोला था, पांड्या था और चेरा था वो अपने ट्रेड के लिए रोम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था. द रोमन्स वर द चीफ कस्टमर्स ऑफ साउथ इंडियन goods such as spices, textiles, precious stones, birds, usually peacocks, and animals such as bears and monkeys. The markets of Rome were full of Indian luxury goods. जो रोम था उसका मार्केट लग्जरी गुड्स से, लग्जरी सामानों से, इंडियन सामानों से भरा हुआ था. Roman ships came from the Red Sea across the Arabian Sea to the Malabar coast or sailed up the Straits of Mannar to the east coast. The condition of the trade was very good in the country. ट्रेड का कंडीशन कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ये क्या था, ये मालाबार कोस्ट तक आता था अरेबियन सी के द्वारा. द साउथ इंडियंस सेंट देयर गुड्स टू द नॉर्थ इंडियंस. द ट्रेड मेड साउथ इंडियन किंगडम वेरी रिच. फॉरेन इन्वेंशंस. The Mauryan Empire split into many kingdoms after the death of Ashoka. बच्चों जो मौर्यन थे उन्होंने बहुत सारे किंगडम को स्प्लिट कर दिया था अशोका के बाद में, मतलब अशोका के डेथ होने के बाद में, उनके मरने के बाद में. The north western part of India now saw the coming of a number of work-like foreign races, the Bactrians, Parthians, Sakas and Kushanas. They came in the years between 200 BC and 100 AD. ये 200 BC और 100 AD के बीच में आए थे. इन्वेंशन ऑफ द बैक्टीरियन ग्रीक्स. बैक्टीरियन ग्रीक्स का इन्वेंशन कैसे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरियन ग्रीक्स केम टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. जो बैक्टीरियन ग्रीक्स थे वो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आए थे. दे वर ऑल्सो कॉल्ड द इंडो ग्रीक्स. इन्हें इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता था. मेनांदर देयर most powerful king was also known as Milanda. He embraced Buddhism. A number of coins of their dynasty give information about this dynasty. बच्चों जो इनका किंग था उसका नाम था मिलिंदा और इनका जो पावरफुल इनका जो जगह था उनका नाम था निनांद. वो काफ़ी पावरफुल था और जो मिलिंदा इनका राजा था वो बुद्धिज्म को काफ़ी इंस्पायर करता था. इन्वेंशन ऑफ द शाकास. After the Indo-Greeks, the Sakas came to India. They captured a larger part of India that the Greeks did. बच्चों जो इंडो-ग्रीक्स थे यानी साकास थे वो इंडिया में इंडो-ग्रीक्स के बाद आए थे. They came to Western India and overran Sindh and Shautrashtra. They finally settled down in काठियार and मालवा. ये सेटल डाउन हो गए कहाँ पर बच्चों? काठियार और मालवा में. The most famous Saka ruler in India was Rudraman. 130 AD to 150 AD. जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने रूल किया था, जो सबसे ज़्यादा फेमस साका था वो कौन था? रुद्रदमन, जो कि 130 से 150 AD तक रहा था. द साका सक्सेसफुली चेक्ड द एक्सपेंशन ऑफ द सतावनहास नॉर्थ ऑफ द नर्मदा. इन्वेंशन ऑफ द कुशानास. They first occupied Bactria or North Afghanistan by displacing the
Chakas. Gradually, they advanced to the Kabul valley and seized Gandhara, replacing the rule of the Greeks and the Parthians in these areas. इन्होंने क्या किया था? गंधारा को हटा दिया था, रिप्लेस किया था ग्रीक्स के रूल को और पार्थियंस को. इस एरिया से बिल्कुल इन्हें निकाल कर फेंक दिया था. They then established themselves at Takshila and Peshawar. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. और उसके बाद इन्होंने तक्षशिला और पेशावर यहाँ पर स्टैब्लिश किया और इनके जो दो मोस्ट पावरफुल सेंटर थे वो कौन से थे बच्चों? वो थे पेशावर और मथुरा. कनिष्का was the most famous Kushana ruler from the statue situated at Mathura. It is evident that he was a well-built man. जो बच्चों कनिष्का था वो फेमस कुशाना रूलर था जो कि फेमस well-built man था. He worked hard to make his kingdom strong and powerful in northern India. उन्होंने अपने किंगडम को पावरफुल बनाने के लिए नॉर्थन इंडिया में खूब मेहनत की. ही कंक्वेर्ड कश्मीर, पंजाब एंड मथुरा, बट हिज रियल फेम रेस्ट अपॉन द होल हार्टेड patronage he gave to Buddhism. He organized a Buddhist council in Kashmir where the doctrines of Mahayana form of Buddhism were finalized. He gave monetary support for building Buddhist monasteries. Kanishka was also a great patron of art and the Sanskrit language. जो कनिष्का थे वो संस्कृत लैंग्वेज और पैट्रन ऑफ आर्ट में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थे और उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्स्टरीज को काफ़ी सहायता भी दी थी. आर्ट. Greek sculpture was brought to northern India from the context of Western Asia. Indian craftsmen, especially in the northwestern frontiers of India in Gandhara, were greatly influenced by this new style of sculpture. बच्चों जो इंडियन में गंधारा थे वो इस स्कल्पचर से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि उन्हें ये स्कल्पचर पहले कभी नहीं मिला था. दे अडॉप्टेड द स्टाइल विद लोकल इन्फ्लुएंस एंड दस गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट इन विच द इमेज ऑफ बुद्धा वर मेड इन द ग्रेशियो रोमन स्टाइल. इसमें क्या हुआ था? बुद्धा की इमेज बनाई गई थी किस स्टाइल के द्वारा? ग्रेशियो रोमन स्टाइल के द्वारा. दिस न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट केम टू बी नोन एज गंधारा आर्ट. और इस नए स्टाइल को क्या नाम दिया गया? गांधारा आर्ट. द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ गंधारा आर्ट. जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो रिजल्ट था गंधारा आर्ट का. अ फेमस स्पेसमैन ऑफ दिस आर्ट इज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का फाउंड एट मथुरा. Exchange of ideas. Now, ideas on religion, art and science influenced various aspects of Indian culture because of contacts with Central Asia. बच्चों न्यू आइडियाज़, उसके रिलीजन, साइंस और आर्ट ने कई सारे इंडियन कल्चर को कॉन्ट्रैक्ट किया सेंट्रल एशिया में. द ग्रीक टू एनरिच इंडियन कल्चर इमेंसली. इंडिया केम इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईरान एंड वेस्टर्न एशिया. द कुशानाज कंट्रोल द सिल्क रूट. जो कुशानाज थे उन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया और उसके बाद में विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड पास थ्रू देयर एम्पायर इन सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया. जो कि चाइना से शुरू हुआ और उसके बाद में सेंट्रल एशिया, फिर अफगानिस्तान, ईरान, वेस्टर्न एशिया तक ये जाके बस गया. इसका पूरा साम्राज्य इसने बसा लिया. दिस ट्रेड रूट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम टू द कुशानाज. और ये इनका ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम बन गया. यहाँ से इन्हें खूब इनकम आने लगा. अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स वर कैरिड टू टाउन्स एंड पोर्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. This brought gold in India. Booming trade made towns like Takshila, Mathura and Ujjaini prosperous and important cities. Religion. Indian religion, especially Buddhism, were greatly influenced by the foreigners. It was no longer the simple religion which Buddha had taught. बच्चों जो बुद्धा ने लैंग्वेज टॉट किया था, बुद्धिज्म लैंग्वेज था, वो एक इंडियन रिलीजन था. इट हैड चेंज इमेंसली बाय नाउ एंड हैड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. और ये अब जाके चेंज हो चुका है और दो भागों में बट गया है. कौन कौन सा बच्चों? महान्या और ग्रेट व्हील एंड हिमालय और द स्मॉल व्हील. द फॉलोअर्स ऑफ द महान्या सेक्ट बिकेन टू वर्शिप ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा एंड द बुद्धा सत्वाज. जो महान्या थे उनके जो लोग थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया? बुद्धा की इमेज को वर्शिप करना शुरू कर दिया जिसे बुद्धास्तवा कहा जाने लगा. वी फाइंड मेनी स्टोरीज अबाउट दैम इन द जकार्ता टेल्स. हमें ऐसी कई स्टोरीज जकार्ता टेल्स में देखने को मिली है. सून द महान्या फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बिकेम द डोमिनेंट सेक्ट एंड स्प्रेड थ्रू आउट चाइना एंड सेंट्रल एशिया. और इसके बाद जो बुद्धिज्म है वो चाइना और सेंट्रल एशिया में तेजी से फैल गया.
The expansion of Buddhism. Buddhism attracted a large number of followers because of its simplicity. जो बुद्धिज्म थे यानी जो बुद्धा थे, उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी के चलते बहुत सारे फॉलोअर्स उनके इकट्ठे हो गए थे। बहुत लोग थे जो उन्हें खूब मानते थे, उनके रूल्स को, उनकी बातों को और उनके वचन को फॉलो करते थे। The Buddhist monks did selfless service to spread Buddhism and many kings became followers of Buddhism. जो बुद्धिज्म मॉन्क्स थे यानी जो पंडित थे, उन्होंने सेल्फलेस काम किया ताकि बुद्धिज्म को आगे बढ़ा सके, उनके रिलीजन को आगे बढ़ा सके और कई सारे राजा बुद्धिज्म को मानने लगे। इवेंचुअली बुद्धिज्म बॉर्न इन मगधा स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। किंग्स लाइक अशोका एंड कनिष्का टुक विगरस स्टेप्स टू स्प्रेड दिस रिलीजन। जो अशोका थे और कनिष्का जैसे राजा भी बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में लग गए थे। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में या यूं कहे कि पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म की चर्चा होने लगी थी, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। कनिष्का एंड अशोका सेंट मिशनरीज टू साउथ ईस्ट एशिया। टुडे बुद्धिज्म इज अ वर्ल्ड रिलीजन एज इट इज कास्टलेस, इट अट्रैक्ट्स दोज विशिंग टू स्टेप साइड द कास्ट सिस्टम। बच्चों, बुद्धिज्म कोई कास्ट नहीं है, यहाँ पर किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं और बुद्धिज्म के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। टुडे कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, म्यांमार एंड श्रीलंका आर नोन एज बुद्धिस्ट कंट्रीज। इन सभी को बुद्धिस्ट कंट्रीज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में जो लोग हैं वो बुद्धा को मानने वाले हैं। बुद्धा हैज़ बिन राइटली कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। टुडे बुद्धिज्म हैज़ इवन बिकम पॉपुलर इन यूरोप। बुद्धिज्म यूरोप में भी पॉपुलर हो चुका है और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फैक्ट फाइल: The ideas of the Bhakti movements later became the central feature of Hinduism. Science. Indian astronomy and astrology profited by contact with the Greeks. We notice that the Greek terms related to the movement of the planets are almost the same as the term used in Sanskrit texts. There is no denying to the fact that Indians are not indebted to the Greeks in medicine. बच्चों, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने अपना पूरा आभार दिया है, पूरा योगदान दिया है ग्रीक्स के मेडिसिन्स में। फिजिशियंस लाइक सुश्रुता एंड चक्रा डेल्ट विद द सब्जेक्ट्स अडेक्वेटली। इन दोनों ने ही अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। चक्रा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। द चक्रा संहिता contains names of many plants and herbs from which drugs were prepared to treat the ailing. बच्चों, जो चक्रा थे वो कनिष्का के हर्ब्स में, उनके कोर्ट में काम करते थे और इनके द्वारा बनाई गई कई सारे हर्ब्स हैं, कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो आज भी काम में आती हैं। कंसिडरेबल अचीवमेंट्स वर मेड इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। और इनकी जो अचीवमेंट है वो काफ़ी कंसिडरेबल है क्योंकि सर्जरी में इनकी अचीवमेंट्स नजर आई है। Period between 200 BC to 300 AD. During this period, the Indians got tremendous achievement in all walks of life. जो इंडियंस हैं वो इस एरा में उन्होंने कई सारी ट्रिमेंडियस अचीवमेंट्स पाई है। Indian culture was enriched by the influx of new knowledge and new practices. Modern India's official calendar is the ancient Saka calendar founded by Kanishka. बच्चों, जो इंडियन कैलेंडर है उसे साका कैलेंडर कहा जाता है और इसका ओरिजिन कौन है, इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर था कनिष्का। द बिगिनिंग्स ऑफ भक्ति। द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। जो बिगिनिंग है भक्ति मूवमेंट का वो इस पीरियड का सबसे बड़ा अचीवमेंट है बच्चों। द कंसेप्ट ऑफ भक्ति ओरिजिनेट्स फ्रॉम द भगवत गीता। भक्ति वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ वो कहाँ से हुआ? भगवत गीता से। द भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट एपिक द महाभारता। In the Bhagavad Gita, Krishna asked his devotee Arjuna to surrender in him, as only he can set him, Arjuna, free from every evil. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं बच्चों? अर्जुन को कहते हैं कि वो अर्जुन, हे अर्जुन, तुम अपने आप को मेरे अंदर समर्पित कर दो, समाहित कर दो, क्योंकि मैं ही हूँ, सर्वस्व हूँ, मैं ही जो हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। भक्ति comes from the Sanskrit word bhaja, which means to share bhaga or good fortune by the blessing of God. बच्चों, जो भक्ति वर्ड है ये संस्कृत वर्ड भाजा से लिया गया है जिसका मतलब है अच्छा फॉर्चून और ब्लेसिंग ऑफ गॉड यानी गॉड का आशीर्वाद। भक्ति मीन्स डिवोशन और कंप्लीट अनक्वेश्चनिंग सरेंडर बिफोर द लॉर्ड। द डिवोटी इज नोन एज अ भक्ता। जो डिवोटी होता है, जो प्रार्थनार्थी होता है, उसे भक्ता कहते हैं। इन भक्ति देयर इज नो प्लेस फॉर डिजायर, ओनली सेक्रीफाइस। भक्ति में कोई लोभ नहीं होता, केवल होता है तो सेक्रीफाइस। भक्ति डज नॉट अलाउ एनी ब्राह्मणिक
creeds or rituals. Bhaktism emphasizes devotion and individual worship of the god or goddess. The ideas of the Bhakti movement later become the central feature of Hinduism. आइडियाज़ जो है भक्ति का वो सेंट्रल फीचर बन गया हिंदुइज्म का, क्योंकि भक्ति में केवल सेक्रीफाइस होता है, उसमें कोई लोभ नहीं होता। बच्चों अब आ जाते हैं फैक्ट फाइल पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी B.R. अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गॉट कवर्ड टू बुद्धिज्म जस्ट बिफोर हिज डेथ ऑन December 6, 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें बुद्धिज्म को में कन्वर्टेड किया था खुद को, बिफोर अपने डेथ से कुछ दिन पहले ही वो बुद्धिज्म बन गए थे, दिसंबर 6, 1956 को। वर्ड ट्रेजर, हब, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्टिविटी। पैट्रॉन जे, सपोर्ट गिवन बाय अ पैट्रॉन। मिशनरी, अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन। भक्ति, अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।